Hello friends, this is Aswini Sadhana Arjun, and today we are going to start an important topic of law of tort, that is contributory negligence. In our last lecture, we have discussed the concept of negligence. Negligence means carelessness or ignorance by one person against the another. There are some essential elements for a wrongful act to be negligent. First one is there must be a duty. Duty must be towards the plaintiff, breach of duty, and damage. So we can say negligence is a type of tort which means a breach of duty, duty to take care. Why one person which causes damages to another person. It is an act of carelessness and ignorance on the part of the defendant which he is obliged to perform, which a rational and prudent man would not do. In general, negligence is the omission to perform a duty which results in the plaintiff's injury. Negligence is committed in respect of both person and property. So, इसी टर्म में हम कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस एक केयरलेसनेस या इग्नोरेंस होती है जो डिफेंडेंट करता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट में, या हम कह सकते हैं कि डिफेंडेंट की एक ड्यूटी होती है टेक करने की अगेंस्ट द प्लेंटिफ, और वो उस ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाता है, तो ये कहा जाता है कि ये नेग्लिजेंस है. नेग्लिजेंस जो है ये अगेंस्ट द पर्सन भी हो सकता है और अगेंस्ट द प्रॉपर्टी भी हो सकता है. लेकिन आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस. जैसे अभी तक हमने क्या देखा है कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंस करता है जिससे प्लेंटिफ को डैमेज होता है, और प्लेंटिफ केस फाइल करके जो है वो रेमेडी में कंपनसेशन ले लेता है. लेकिन उस केस में क्या होगा अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही नेग्लिजेंट हो, अगर दोनों ने गलती की हो, उस कंडीशन में क्या होगा. तो कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप हुआ है, एंड वी कैन से contributory negligence basically means ignorance from both the parties involved. For example, if a person is driving a car without any brakes, met with an accident with another person who was driving on the wrong side of the road, this results in contributory negligence. It's a defense available to the defendant in case of contributory negligence which prevent the plaintiff to get compensation. The defense of negligence is available for the plaintiff, and the defense of contributive negligence is available for the defendant. There is a leading case on this topic, that was Butterfield versus Forrester. In this instant case, due to the ignorance of the plaintiff, in order to take due care while driving, he met with a collision with the pole which was wrongfully obstructed by the defendant. So without considering the negligence of the defendant, the plaintiff could have avoided the accident. इस केस में क्या हुआ कि एक पर्सन ने गलत जगह पे कोई पोल लगा दिया था, जो डिफेंडेंट था. प्लेंटिफ जब इधर से आया तो उसने क्या किया, उस पोल से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने केस फाइल किया. लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो चाहता तो इस एक्सीडेंट को बचा सकता था, कि डिफेंडेंट ने तो नेग्लिजेंस किया ही है लेकिन इन्होंने भी नेग्लिजेंस किया. तो यहाँ पे लायबिलिटी डिफेंडेंट को नहीं दी गई. लेकिन इसके बाद एक रूल आता है, रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी. लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल के नाम से जाना जाता है. लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल का मतलब ये हुआ कि आगे चल के कोर्ट्स ने एक रूल डेवलप कर लिया. उनका ये कहना था कि किसी भी एक्सीडेंट में, किसी भी रॉन्गफुल एक्ट में अगर दोनों पर्सन गलत हैं, दोनों पर्सन नेग्लिजेंट हैं, तो ये देखा जाएगा कि उस एक्सीडेंट को रोकने की लास्ट अपॉर्चुनिटी किसके पास था. मतलब फाइनली कौन उस एक्सीडेंट को रोक सकता था. जैसे अगर हम पिछला वाला एग्जाम्पल ले लें
बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर का। तो वहां पे अगर लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल हम अप्लाई कर देते तो ये कहा जाता कि लास्ट अपॉर्चुनिटी किसके पास थी, प्लेंटिफ के पास थी, कि वो इसको रोक सकता था। So we can say the term rule of the last opportunity means the last opportunity to avoid an accident. If in a situation both the plaintiff and the defendants are negligent on their part, and whosoever has the last opportunity of avoiding such consequences fails to do so, will be held responsible for such accident solely. अब होता क्या था कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस पर्सन पे डाल दी जाती थी जो कि लास्ट में उस एक्सीडेंट को रोक सकता था, जिसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। और ये डेवलप हुआ था कॉन्सेप्ट डेविस वर्सेस मान के केस में। यहाँ पे प्लेंटिफ ने एक अपने गधे को रोक दिया था, मतलब गली में छोड़ दिया था रोड पे, और प्लेंटिफ गाड़ी लेके आ रहा था तो एक्सीडेंट हुआ और उस गधे की डेथ हो गई थी। तो फिर से समझ लेते हैं इस केस में हुआ क्या, कि जो प्लेंटिफ था उसने एक गधे को, अपना गधा था उसके पास, उस गधे को रोड पे छोड़ दिया था। डिफेंडेंट जब गाड़ी लेके आ रहा था तो डिफेंडेंट की टक्कर हुई जिससे गधे की डेथ हो गई, और गधे का जो मालिक था उसने प्लेंटिफ ने केस फाइल किया कंपनसेशन के लिए। यहां पे उसको कंपनसेशन दिया गया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जो डिफेंडेंट है उसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए। क्योंकि देखिए अगर आप किसी जानवर को खुली रोड पे छोड़ देते हैं तो नेग्लिजेंट तो आप भी हैं, लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने तो छोड़ दिया था। अब अंतिम अवसर किसके पास था इस एक्सीडेंट को बचाने का? गाड़ी वाले के पास जो डिफेंडेंट था। यहाँ पे उसको लायबिल बनाया गया तो लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल जो है वो दिया गया। लेकिन ये सब जो प्रॉब्लम थी, अच्छा इसमें दिक्कत क्या आती थी कि अगर हम जिसके पास अंतिम अवसर होता था उसको लायबिलिटी दे देते थे, जो पहले नेग्लिजेंट है वो बच जाता था अपनी लायबिलिटी से। तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर किया गया लॉ रिफॉर्म कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस एक्ट 1945 के द्वारा। और इन्होंने ये कह दिया कि अगर दोनों पर्सन नेग्लिजेंट हैं तो जिस रेशियो में उनकी गलती है उसी रेशियो में उनको कंपनसेशन देना होगा। मतलब जैसे ऐसे समझ लीजिए कि एक एक्सीडेंट हुआ ए और बी का, यहाँ पे ए की 100% गलती है और बी की कोई गलती नहीं है, और फॉर एग्जाम्पल बी को कंपनसेशन मिलेगा 100 रुपए। अब मान लीजिए ए की गलती हो 70%, बी की गलती हो 30%, तो 30% कंपनसेशन में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो भाई उसकी 30% गलती थी, इनकी 70% थी, तो अब 100 रुपए में से कितने रुपीज मिल जाएंगे? 70 मिल जाएंगे। यानी जिस रेशियो में गलती होगी उसी रेशियो में कंपनसेशन भी डिसाइड किया जाएगा। सो वेयर एनी पर्सन सफर्स डैमेज as the result partially of his own fault and partly of the fault of others, the damages are recoverable but shall be reduced to an extent as the court think just fit as per fault of other person. यहाँ पे एक चीज और का ध्यान रखना है कि एक रूल ऑफ अवॉइडेबल लॉसेस भी है, कि जैसे अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में ए की नेग्लिजेंस की वजह से बी का कोई डैमेज हुआ, तो अब बी को ये नहीं करना है कि आराम से बैठ जाए सोचे ठीक है अब ए से तो डैमेज मिल ही जाएगा। लॉ ये भी कहता है कि उस डैमेज को, उस लॉस को जितना आप कम कर सकते हो वो कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कुछ थोड़े से भी फर्ज से कुछ लॉस को कम कर सकते थे, आपने नहीं किया, तो जब आपको कंपनसेशन मिलेगा तो वो कम कर दिया जाएगा। Rule of avoidable losses means the duty of an injured person to mitigate the losses or damage. ये ड्यूटी है कि वो लॉस को कम से कम करने की कोशिश करे अपनी पूरी। The plaintiff after sustaining injury could make appropriate efforts in order to reduce the effect of such injury. This rule acts to disqualify the plaintiff to take any award from the injury if the defendant can prove that the plaintiff ignored to make such efforts in order to reduce the losses. अगर डिफेंडेंट ने ये प्रूव कर दिया कि प्लेंटिफ इस लॉस को कम कर सकता था लेकिन इसने नहीं किया, तो कोर्ट जब आपको कंपनसेशन दिलाएगा तो वो सब रिड्यूस कर देगा जो कि आप कम कर सकते थे।
इसको अगर इलस्ट्रेशन आप समझना चाहें तो बहुत इजी वे में हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी ट्रक में हमारा कोई माल जा रहा था, ठीक है, कोई भी चीज जा रही थी, जैसे मान लीजिए सेब ही जा रहे थे, एक ट्रक भर के सेब हमारे जा रहे थे कहीं पे। अब सामने वाले की नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट हुआ और वो गाड़ी हमारी जो है पलट गई। अब आधे सेब तो मान लीजिए कि गाड़ी में रहेगा या आधे सेब जो है वो नीचे गिर गए, लेकिन अभी भी जो आधे सेब गाड़ी में वो तो हमारे सुरक्षित है, उसमें से भी जो बिल्कुल सही है, खराब नहीं हुए, उन्हें हम रख सकते थे और रखने के बाद इस पूरे लॉस को कम कर सकते थे। मान लीजिए हमने सोच लिया कि चलो ठीक है, इसकी नेग्लिजेंस है, हमें तो पूरा कंपनसेशन मिल ही जाएगा, तो हम उन सेब को उठाते भी नहीं है और टोटल डिमांड करते हैं कि कंपनसेशन हमें मिल जाए। तो कोर्ट कहेगा कि ठीक है, इसकी नेग्लिजेंस थी, आपका नुकसान हुआ, लेकिन इसको तो आप कम कर सकते थे, जितने सेब बच सकते थे वो आपको बचाने चाहिए थे, जिस रेट में भी वहां बिक जाते आप बेच देते, फिर भी जितना लॉस होता वो हम आपको दिलवाते। तो कहने मतलब है, जो भी लॉस आपका हो रहा है उस लॉस को कम करने के जितने भी एफर्ट्स हैं वो आपको करने चाहिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है बर्डन ऑफ प्रूफ का। देखिए एक्चुअली में जनरल रूल ये होता है, जो भी पर्सन कहता है कि ऐसा हुआ है उसी पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, ये साबित करने का कि हाँ ऐसा हुआ है। जैसे अगर ये कोई कहे कि मेरे साथ इसने चोरी की, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि इसने चोरी की है। कुछ इसके एक्सेप्शंस है, वो एक अलग चीज है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट में हम डील करते हैं उसको। नेग्लिजेंस के केस में जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज करता है वो किस पे लाइज करता है? प्लेंटिफ पे, क्योंकि नेग्लिजेंस में कौन प्रूफ करेगा कि सामने वाले की डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस है? प्लेंटिफ। और ऐसे ही कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? जिसको उसका फायदा मिलना है। फायदा किसको मिलना है? डिफेंडेंट को। देखिए इन केस ऑफ नेग्लिजेंस प्लेंटिफ हैज द बर्डन ऑफ प्रूफ, he must prove that he has sustained injury from the negligence of the defendant and there stand a proximate relation between them। जो उसको डैमेज हुआ है उसमें और जो उसकी ड्यूटी टेक केयर थी उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। अब कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? डिफेंडेंट पे होता है। इन ऑर्डर टू गेट द डिफेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस द डिफेंडेंट मस्ट प्रूव that the plaintiff is responsible as him and ignored due diligence which could have avoided such consequences arising from the negligence of the defendant। कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस में डिफेंडेंट प्रूव करता है कि ये खुद नेग्लिजेंस है, अगर ये चाहते तो इस एक्सीडेंट को रोक सकते थे। अब ये तो हमने देख लिया कि एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? प्लेंटिफ पे। एक तरफ किस पे है? डिफेंडेंट पे है। कभी कभी कैसा होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ना प्लेंटिफ पे होता है ना डिफेंडेंट पे होता है, बल्कि एक्सीडेंट खुद अपने आप बता रहा होता है कि इसमें गलती किसकी है, कुछ चीज ऐसी हो जाती है। तो ये एक डॉक्ट्रिन है दैट इज कॉल्ड रेस इप्सा लोक्यूटर, व्हिच मींस द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। घटना स्वयं प्रमाण, चीजें खुद अपने लिए बोलती हैं कभी कभी। It is elementary in the law of torts that the onus of proving negligence lies upon him who alleges it। एक्चुअली में देखिए ओनस होता क्या, अगर बर्डन ऑफ प्रूफ को अच्छे समझना है तो जो बैडमिंटन होता है उसके हिसाब से आप डील करके चलिए। अब बैडमिंटन में क्या होता है, दो तरफ दोनों लोग होते हैं, दोनों के हाथ में बैडमिंटन होता है, एक सेटल होता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जिसपे भी है, समझ लीजिए मान लीजिए अगर प्लेंटिफ पे है तो इसका मतलब हुआ कि प्लेंटिफ के पास जो है वो फर्स्ट सर्विस करने का मौका है, पहली सर्विस ये कर देगा। अब उधर को क्या करना होगा, इसको वापस इधर करना होगा। तो जो सेटल होता है उसको ओनस कहते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ तो प्लेंटिफ पे है, लेकिन ओनस जो है ये क्या है, शिफ्ट होता रहता है। और सेटल जिसकी तरफ गिर जाएगी वो हार जाएगा, मतलब वो अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाएगा। इन्होंने ये कहा है कि ओनस उस पर्सन पे होता है जो प्रूव कर रहा होता है, अगर वो उस बात को प्रूव नहीं कर पाएगा तो हार जाएगा। एंड इट इज रिपीटेडली डिक्लेयर्ड दैट नेग्लिजेंस विल नेवर बी प्रिज्यूम्ड। नेग्लिजेंस को कभी हम प्रिज्यूम भी नहीं करते हैं, ठीक है। इवन इफ देयर वी आर प्रिजम्पशन टू एड द प्लेंटिफ, ही मस्ट स्टिल प्रूव बाय अ प्रिपॉन्डिरेंस ऑफ द एविडेंस दैट डिफेंडेंट हैज बीन नेग्लिजेंट। उसको प्रूव करना होगा डिफेंडेंट को कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस के केस में और प्लेंटिफ को नेग्लिजेंस के केस में। लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट है रेस इप्सा लोक्यूटर का, और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूछा जाता है वेदर द रेस इप्सा लोक्यूटर इज अ रूल ऑफ एविडेंस और रूल ऑफ नेग्लिजेंस। तो हम नेग्लिजेंस के साथ पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि रूल ऑफ नेग्लिजेंस है, जबकि ऐसा गलत है।
रेस इप्सा लोकेटर इज द प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, क्योंकि ये घटना खुद अपना एविडेंस देती है। कभी कभी होता है कि घटना ऐसी है कि वहां पे हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, केवल ये हमने बता दिया कि ऐसी घटना घटित हुई है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि सामने वाले की नेग्लिजेंस है, क्योंकि वो बिना नेग्लिजेंस के घटना हो ही नहीं सकती। जैसे मान लीजिए किसी सर्जन ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद जो है अपना मोबाइल किसी के पेट में भूल गया, तो यहाँ पे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आपका मोबाइल पेशेंट के पेट में है, ये सफिशिएंट है दिखाने के लिए कि आप नेग्लिजेंट है। अगर आप नेग्लिजेंट ना होते तो ये फोन जो है उसके मोबाइल पेट में होता ही नहीं। कैंची भूल गए, मोबाइल भूल गए, कॉटन भूल गए, तो ये सब चीजें होती रहती हैं। लेफ्ट आई का ऑपरेशन कराने गए, राइट का ऑपरेशन हो गया, ये सब क्या है, सीधे सीधे नेग्लिजेंस दिखता है। तो some courts however regard the doctrine of res ipsa loquitur as symbolizing the principle of evidence which accepts certain situations from the general rule. Res ipsa loquitur typically arises in cases where the negligent act is so obvious that there is no need for evidence of what happened. हमें ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है कि क्या हुआ है, इंसिडेंट खुद बता रहा है कि ये मामला नेग्लिजेंस का है। What must have happened in apparent from the surrounding circumstances, the finder of fact must be able to infer through common knowledge and experience that negligence occurred. कि जो सराउंडिंग्स है, सर्कमस्टांसेस है, वो एक प्रूडेंट पर्सन जो है वो अपने आप समझ जाएगा कि ये सब क्यों हुआ है। एक केस हुआ था वैन वर्सेस वोडल का। इसमें क्या हुआ था, एक पर्सन जो है वो एक फ्लोर वेयर हाउस था, उसके पास से निकल रहा था और ऊपर से कुछ बैरल जो है वो उसके ऊपर गिरे आके। अब ना तो वो प्रिज्यूम कर सकता था, ना बेचारे के पास कोई ऐसा प्रूफ था कि वो ये प्रूव कर पाए कि ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये बैरल टोटल कंट्रोल में तो है वर्कर्स के, और अगर ये विंडो से नीचे गिरे हैं आके, इसका मतलब है कि वो नेग्लिजेंस ही है, और यहाँ पे कंपनसेशन दिलाया गया। Res ipsa loquitur is also sometimes applied in medical malpractice cases. एक्चुअली में जो रेस इप्सा लॉक्यूटर है ये ज्यादातर मेडिकल केसेस में दिखता है। जैसे अभी हमने इलस्ट्रेशन दिया कि सर्जरी के टाइम पे कोई गलत सर्जरी हो गई, कोई चीज आप भूल गए, तो साफ साफ दिखता है कि ये आपकी नेग्लिजेंस है। एक और इसी के साथ नया टॉर्ट जो है वो एड ऑन हो रहा है आज की डेट में, उसको कहते हैं नर्वस शॉक। क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है कि अगर किसी के रॉन्गफुल एक्ट से किसी को इंजरी होती है तो ये टॉर्ट हो जाता है, हम सब देख के आए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रॉन्गफुल एक्ट किसी दूसरे के साथ हुआ, लेकिन केवल उसको देख के या सुन के किसी को शॉक लग गया, उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ये पर्सन डायरेक्टली उससे नहीं अटैच होता है। और हम एक चीज पढ़ के आए हैं कि डैमेज जो है वो आपका रिमोट कॉज नहीं होना चाहिए, रिमोट इफेक्ट नहीं होना चाहिए, डैमेज आपका डायरेक्ट इफेक्ट होना चाहिए उस कॉज का, उस एक्ट का। वो रूल हम पढ़ के आए हैं। अब ये नर्वस शॉक की बात आ गई, तो in no area of tort is the task of providing liability more difficult or more contentious than in the case of nervous shock, where the victim claims is based on psychiatric damage. जो नर्वस शॉक है ये प्रूव करना सबसे ज्यादा टफ है, क्योंकि ये मेंटल एलिमेंट होता है, डायरेक्ट ये पर्सन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। Where the damage is the result of the effects that are suffered by another due to carelessness of the tortfeasor. tortfeasor की केयरलेस से, जैसे ए ने एक्सीडेंट किया बी का, अब इस एक्सीडेंट को सी जो वहां खड़े हुए थे उनको हार्ट अटैक हो गया, कोई नर्वस शॉक हो गया, ठीक है, तो यहां पे सी की क्या कंपनसेशन बनता है, इसको हम डील करेंगे नर्वस शॉक। एक केस हुआ तो विक्टोरियन रेलवेज कमिश्नर वर्सेस क्वार्टर्स का ये केस था। इसमें ये था कि एक पर्सन ने ये देखा कि एक ट्रेन और एक दूसरा था गाड़ी, उसकी टक्कर होने ही वाली है, और ये देख के डर गया, तब तक वो एक्सीडेंट भी हुआ। अब इसकी फिजिकल कोई हार्म नहीं हुआ, लेकिन उसको देख के, ये प्रेग्नेंट थी लेडी जो प्लेंटिफ थी, और इसको हार्म हुआ, जिसके लिए इसने कंपनसेशन के लिए केस फाइल किया। कोर्ट ने यही कहा कि इसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको कोई भी फिजिकल हार्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि वो एक कॉन्सेप्ट चल ही रहा था कि जो आपको नुकसान हुआ है वो रिमोट इफेक्ट नहीं होना चाहिए उस एक्ट का, डायरेक्ट होना चाहिए।
लेकिन एक केस आया डेल्यू वर्सेस वाइट का, इसमें भी यही हुआ कि एक पब था जहां पे कई लोग थे, वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी ने उसको देखा, देखने के बाद वो जो है नर्वस शॉक की वजह से उसको कुछ हार्म हुआ और यहाँ पे उसको कंपनसेशन दिलाया गया। Court granted the compensation to the lady, which opened a new area to claim for compensation under the view of negligence. और इसके साथ ही एक नया एरिया भी ओपन हो गया नर्वस शॉक का, जिसके लिए भी लोगों को कंपनसेशन अब मिलने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए, अच्छा होता क्या है इसमें, हमको पता है कि एक पर्सन की लायबिलिटी वहीं तक होती है जहां तक वो प्रिज्यूम कर सकता है कि उसके एक्ट या ओमिशन से किसी को हार्म हो सकता है। If a person is not in position to presume that whether there may be a chance to cause harm to any other person due to the act or omission of that person, अगर हम प्रिज्यूम ही नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारी लायबिलिटी भी नहीं होगी। और हम का मतलब एक प्रूडेंट पर्सन। तो यहाँ पे एक थर्ड पर्सन जो केवल किसी एक्सीडेंट को, किसी इंसिडेंट को देख के नर्वस शॉक उसको हुआ है, उसको भी कंपनसेशन दिलाया गया। लेकिन आगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया प्राइमरी और सेकेंडरी विक्टिम का। जैसे ए और बी का एक्सीडेंट हुआ और बी को मान लो नुकसान हुआ, तो इनके हिसाब से बी प्राइमरी विक्टिम हो गया जो डायरेक्ट अफेक्टेड है। लेकिन ए बी के एक्सीडेंट को मान लो सी ने देखा और सी को नर्वस शॉक हो गया, तो इन्होंने कहा कि सी अब क्या है, सेकेंडरी विक्टिम है। अब आगे सेकेंडरी विक्टिम को यानी नर्वस शॉक के केस में कंपनसेशन के लिए कुछ इन्होंने रूल्स भी बना दिए। रूल्स क्या क्या बनाए इन्होंने, ये केस आया था अल्कॉक वर्सेस चीफ कांस्टेबल ऑफ साउथ यॉर्कशायर का, इसमें ये रूल डेवलप हुआ और इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सेकेंडरी विक्टिम का कॉन्सेप्ट आ ही चुका था। इसमें इन्होंने कहा देखिए, प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेशनशिप विद द इमीडिएट विक्टिम, यानी कि फर्स्ट विक्टिम और सेकेंड विक्टिम, प्राइमरी विक्टिम और सेकेंडरी विक्टिम के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई पर्सन, उसका रिलेटिव का एक्सीडेंट होता है, देख के अगर उसको कोई हो जाता है तो कहते हैं अब तो बनता है इसका कंपनसेशन। लेकिन मान लीजिए किसी अननोन पर्सन को, ऐसे तो एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ और पता लगे कंपनसेशन वो दे रहा है उसको जिसको नर्वस शॉक हो गया। और ये कोई प्रिज्यूम भी नहीं कर सकता है कि हम एक्सीडेंट करेंगे तो उससे किसी को नर्वस शॉक हो जाएगा और हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन ये हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हम किसी को हार्म पहुंचाते हैं, उसका कोई रिलेटिव अगर साथ में है तो हो सकता है उसे उससे इफेक्ट पड़े। तो इन्होंने कहा कि एक तो रिलेशनशिप होनी चाहिए प्राइमरी विक्टिम और सेकेंडरी विक्टिम में। दूसरा, प्रॉक्सिमिटी इन टाइम एंड स्पेस, मतलब ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट आज हुआ है और नर्वस शॉक आपको कल हुआ सुन के उसको। जब नर्वस शॉक जिसको हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है, वो भी सेम टाइम में हो, उसमें एक बहुत ज्यादा गैप ना हो। द मीन्स बाय विच द साइकियाट्रिक इलनेस इज कॉज्ड, और जिस मीन्स से हुआ है उस पर भी चीजें डिपेंड करेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे हमारे टॉपिक हैं नेग्लिजेंस के साथ। जैसे इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो हम सबसे पहले देखते हैं नेग्लिजेंस क्या है, फिर हम देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में क्या होता है, दोनों की गलती। नेग्लिजेंस में केवल डिफेंडेंट की गलती। नेग्लिजेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, प्लेंटिफ पे। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में किस पे होता है, डिफेंडेंट पे। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो है रेसिप्शल ऑक्यूटर, कि घटना स्वयं प्रमाण। घटना कभी कभी खुद कहती है कि भाई ये तो नेग्लिजेंट ही है, और उसके बाद नर्वस शॉक, डायरेक्ट विक्टिम कोई और है, लेकिन एक थर्ड पर्सन जिसको नर्वस शॉक हुआ है उसको भी कंपनसेशन मिल सकता है। अभी डेवलप हुआ डेल्यू वर्सेस वाइट के केस में। उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी विक्टिम का कॉन्सेप्ट है। तो ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है। कुछ केस लॉ इसमें जो है वो आप और एड ऑन कर सकते हैं अगर कहीं से पढ़ेंगे आप। बाकी ये मोर देन सफिशिएंट है एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, और सबसे बड़ी बात है अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। थैंक्स अ लॉट।